हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग। एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग के ऊपर हमको यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है। बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं। Giving a fish to a man provides him a food for the one day। एक आदमी को मछली दी तो उसके लिए एक दिन का गुजारा हो जाएगा। Teaching him how to fish provides him with food for all his life। और उनको सिखाना कि किस तरीके से फिश से आप पूरी जिंदगी का पेट भर का खाना खा सकते हो। This Chinese proverb illustrated the basic idea behind the one concept of training entrepreneurs। यही एक चाइनीज फिलोसफी हमको बताती है कि एंटरप्रेन्योर्स की ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। The cultural leadership and the management training rest on the three pillars. Firstly, personality and team training with emphasis on the leadership। पहले तो ये personality और team training के ऊपर काम करते हैं, जो कि main emphasis है हमारा leadership और communication aspect का। Second, corporate management training with emphasis on the management aspect। और दूसरी बात training है जो कि management aspect का काम कर रही है। And third, the individual field specific training। और तीसरी है individual field specific training है in the finance, manufacturing, technology या फिर services की हो सकती है। The program of the training in the entrepreneurship development is to develop the motivation of the potential entrepreneurs की motivation को बढ़ाना, help them undertake the suitable enterprise and the activities, enable them to prepare the economically available, economically उनको prepare करना, technically feasible करना project को and report and enhance their enterprise building skills। enterprise को speed up तरीके से build up करना। the motivational inputs include the psychological games भी आ गए, test भी आता है, goal setting भी आ गया, exercise भी आ गया, और जो भी वो role play करते हैं वो सब चीजें भी आ गई। the objective of these inputs is to enable the participant to understand their own entrepreneur personality। अपनी खुद की एक entrepreneur की personality को डिफाइन करना एंड बिहेवियर एंड टू ब्रिंग अबाउट सेल्फ स्टडी चेंज इन द सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टडी चेंज करना, वैल्यूज को चेंज करना, लीड करना पॉजिटिव एंटरप्रेन्योर के बिहेवियर को भी। द ट्रेनिंग प्रोग्राम इनेबल्स द एंटरप्रेन्योर्स टू डेवलप द स्किल्स को डेवलप करना, आइडेंटिफाई करना, सूटेबल आइटम्स के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर करना, सारे एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स को। टेक्निक्स बेसिकली कंडक्ट करती है बहुत सारी स्टडीज, मार्केट सर्वेज और रिसर्च शुड बी फर्दर बी कवर्ड इन द प्रोग्राम फॉर द ट्रेनिंग बेस्ड ऑन विच द प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड। जिसके लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को भी प्रिपेयर करा जाता है। For organizing an industry, information on the government policies and the programs is helpful to the entrepreneur। Entrepreneurs के लिए government programs भी बहुत ज्यादा helpful है इन सब चीजों को organize करने के लिए। A number of institutional agencies offer the finance, raw material, ready-made sheds, power, machineries and equipment, water provide करते हैं। Some states have introduced the schemes of the incentive and concessions available to the entrepreneurs। Entrepreneurs जितने concession है उसको available करा सकते हैं। A program for the training for the entrepreneur development should also cover the information on the program of the assistant and support system। Assistance और support system के ऊपर भी program बनाए जाते हैं। The training program should not only develop the proper entrepreneur motivation। से proper entrepreneur motivation को वो डेवलप नहीं करते, स्किल्स को डेवलप नहीं करते, प्रोजेक्ट को प्रिपेयर नहीं करते, बट शुड also ensure that entrepreneurs are able to develop their enterprise। entrepreneurs को able करते हैं कि वो enterprise को develop कर सकें well by the application of the scientific management techniques in the various fields of management। बहुत सारी fields of management के अंदर अगर हम बात करें तो the managerial content of the program of the training should be considered as a vital for the developing the enterprise। enterprise को किस तरीके से डेवलप करा जाता है, बिल्ड कर सकते हैं, और various aspects of the management such as the financially management हो गया हमारा, marketing management हो गया हमारा, production management हो गया हमारा, inventory control हो गया हमारा, layout हो गया taxation का। इन सबको प्रोग्राम्स, ये सारे प्रोग्राम्स इसके अंदर कवर किए जाते हैं। नीड्स एंड द रेलेवेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग। इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ती है? बेसिकली हम चेंज करते हैं हमारी पर्सनैलिटी को, पार्टिसिपेंट्स की पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती है, एक एट्रीब्यूट से आता है, आउटलुक चेंज हो जाता है, उनके आइडियाज को कन्वर्ट कर सकते हैं हम इंप्लीमेंटेशन के ऊपर। इन सब चीजों के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। डिटेल में देख लेते हैं। रेलेवेंट पॉइंट समराइज कर रखे हैं हमने ट्रेनिंग के लिए। ग्रेट गोल इन इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ द न्यू एंटरप्रेन्योर्स। नई एंटरप्रेन्योर्स की सप्लाई के लिए रोल बहुत बढ़ जाता है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का। एलिमिनेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एंड द पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को हम एलिमिनेट कर देते हैं इससे। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, एक रीजनल डेवलपमेंट में एक बैलेंस ग्रोथ हो जाती है। यूटिलाइजेशन ऑफ द लोकल रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज करा जा सकता है। लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट कैन रिड्यूस द अनरेस्ट एंड द वायलेंस अमंग्स द यूथ एज दे वुड बी गेनफुल एम्प्लॉयड। लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट की वजह से हम रिड्यूस कर सकते हैं हमारी वायलेंस
को, यूथ की वायलेंस को भी रिड्यूस करा जा सकता है। इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल्ड मैन पावर एट ऑल द मैनेजरियल लेवल, हर मैनेजरियल लेवल के ऊपर एम्पावर करा जाता है सारे स्किल्स को। एनहांस द एबिलिटी पोटेंशियल एंड द अमंग द एंटरप्रेन्योर्स के अमंग एनहांस करी जाती है एबिलिटी को, एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है, मेंटेन करा जाता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को, मिनिमाइज करा जाता है वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस के वेस्टेज को मिनिमाइज करते हैं, एक्सीडेंट्स जो भी होते हैं उनको मिनिमाइज करा जाता है, रिड्यूस द फटीग एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ द वर्क की स्पीड को इंक्रीज करा जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन इन द इंडस्ट्रियल एंड द इंटरनल प्रोसेस, स्टैंडर्डाइज तरीके से चीजों को तैयार करा जाता है, चाहे वो इंडस्ट्रीज का हो चाहे वो कोई भी इंटरनल प्रोसेस हो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग आर एज फॉलोज, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल मीडियम एंड द एंटरप्राइज दैट वुड एनकरेज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग द पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स के अंदर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है। टू प्रोवाइड द रूरल एरिया स्पेशल प्रोग्राम्स को डिजाइन करके रूरल एरियाज के ऊपर करा जाता है परफॉर्म, and स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करा जाता है। टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन प्रोसेसिंग द इंडिजिनियस रॉ मटेरियल फॉर द लोकल कंजप्शन के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा जाता है, अपॉर्चुनिटीज जनरेट करी जाती है जिससे रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट कर सकें। टू डेवलप द एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज अपॉन द पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया जाता है, अपग्रेड करा जाता है मैनेजर स्किल्स को जो भी एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स के अंदर होती है। टू लेट द एंटरप्रेन्योर सेट और रीसेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को सेट करा जाता है, रीसेट करा जाता है, and the work individually with the along with side of the group of their realization, अपने ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई करके हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर सकते हैं। to prepare him for accepting the totality unforeseen risk of the business after such training, सब ट्रेनिंग के अलावा रिस्क को भी ascertain कर सकते हैं हम easily। to enable him to take the strategy decisions भी हम इससे ले सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। to enable him to build an integrated team to fulfill their demands for the tomorrow, आज की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए कल के ऊपर काम किया जा सकता है। टू कम्युनिकेट द फास्ट क्लियरली एंड इफेक्टिवली, कम्युनिकेट करना फास्टली क्लियरली और इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। टू डेवलप द ब्रॉड विजन टू सी द बिजनेसेस एज होल एंड इंटीग्रेटेड द फंक्शंस विद इंटीग्रेट करना सारे फंक्शंस को और पूरे बिजनेस को अच्छी तरह समझना। टू इनेबल रिलेट हिज प्रोडक्ट को रिलेट करना, इनेबिलिटी प्रोवाइड करना टोटल एनवायरनमेंट के हिसाब से। टू इनेबल हिम टू कोप विद द एंड कोऑर्डिनेट ऑल द पेपर वर्क, सारे पेपर वर्क को कोऑर्डिनेट करके रखना। टू स्ट्रेंथन एंड इट्स इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड कंप्लायंसेस विद द लॉ, टू की द सक्सेस ऑफ द लॉन्ग रन की सक्सेस के लिए हर एक चीज को बहुत ही अच्छी तरह तैयार करना। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होगी। कोर्स कंटेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग का कोर्स कंटेंट कैसा होता है? द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यूजुअली फॉलो द यूनिफॉर्म कोर्स करिकुलम फॉर द ईडीपीज कंडक्टेड इन द कंट्री के अंदर जितने भी ईडीपीज कंडक्ट होते हैं उसका एक यूनिफॉर्म करिकुलम होता है। द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग इज नॉर्मली 4 to 6 वीक, 4 से 6 वीक की ट्रेनिंग होती है। द आइडल इनटेक इन अ ग्रुप ऑफ 30 to 35 पर्संस का एक ग्रुप होता है जिसके ऊपर ट्रेनिंग करी जाती है। The following inputs are covered during the period of the training which are sufficient for the person to gain the fundamental knowledge of the entrepreneurship, जहाँ पे एक fundamental knowledge सेट करी जाती है एंटरप्रेन्योरशिप की और एंटरप्राइज को लॉन्च करा जाता है मैनेजमेंट के अंदर। Introduction of the fundamental of the entrepreneurship. This unit is devoted to give an exposure to the trainees on the fundamental of the small scale enterprise को फंड करने के लिए, small business sector को मेंटेन करने के लिए, the characteristics of the economy, the role of the entrepreneurs in the economic development में क्या रोल हो सकता है, एंटरप्रेन्योर का चांस कैसे होते हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर को जनरेट करने हैं। हिस्ट्री फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप की हिस्ट्री कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम। एंटरप्रेन्योर क्वालिटीज एंड द फैसिलिटीज जो भी अवेलेबल होती है हमारे स्मॉल स्केल एंटरप्राइज के अंदर वो कैसे हो सकती है। मोटिवेशनल इनपुट्स इन ऑर्डर टू डेवलप द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द एंटरप्रेन्योर की कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करने के लिए एंटरप्रेन्योर ट्रेट्स एंड द मोटिवेशनल इनपुट्स आर इंक्लूडेड इन द कोर्स करिकुलम के अंदर एंटरप्रेन्योर्स की ट्रेनिंग इंक्लूड हो जाती है। इन ट्रेनिंग पैरेलल्स दीज इनपुट्स आर टर्म्ड एज अचीवमेंट मोटिवेशन ट्रेनिंग, इसको हम अचीवमेंट मोटिवेशन ट्रेनिंग बोलते हैं। इसका मेन एम क्या है कि अचीवमेंट्स की नीड्स को, सेल्फ अवेयरनेस को, कॉन्फिडेंस को डेवलप करना ट्रेनिंग के अंदर, क्रिएटिविटी पैदा करना, एंटरप्रेन्योर्स की क्वालिटीज को डेवलप करना, बहुत सारे तरीके से साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी हमको प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट इनपुट्स
The potential training entrepreneurs are required to equip with the sound management techniques. Sound management techniques input होती है इसके अंदर to start their business venture and to make them profitable. Business venture को start करने के लिए या उनको profitable बनाने के लिए the EDP's trainees are therefore introduced to the basic functions areas of the management like the production, financial, marketing and the labor management. हर एक function के ऊपर ये perform होते हैं. Support system in the procedure. Support system या procedure किस हिसाब से चलता है यहाँ पे? The participants have to be exposed the role and the functions of the proportional एजेंसीज. बहुत सारी प्रमोशनल एजेंसीज का रोल यहाँ पे परफॉर्म करते हैं हम. इनका मेन ऑब्जेक्टिव इंक्लूड होता है करिकुलम के अंदर या पार्टिसिपेट करना है इनको अलग अलग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो भी इंडस्ट्रीज तैयार करती है, जो भी सर्विस इंडस्ट्रीज तैयार करती है, और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है प्रमोशन के साथ साथ. हम बात करते हैं प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी स्टडी. प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी स्टडी क्या होती है? जो भी ट्रेनीज वगैरह होते हैं उनको बेसिकली एक इंफॉर्मेशन गिवन दी जाती है, काउंसलिंग अबाउट द वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो भी ईडीपीज कंडक्ट होते हैं, जितने भी ईडीपीज कंडक्ट होते हैं उसके लिए अपॉर्चुनिटीज दी जाती है. आफ्टर द ट्रेनी सेलेक्टेड द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक बार अगर ट्रेनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट कर ले तो उसके बाद ईडीपीज जो भी ईडीपीज वगैरह हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं. उसके बाद एक गाइडेड रिपोर्ट तैयार करी जाती है जिसके अंदर एक सबमिशन है हमारे पास किस चीज का? हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का. इनपुट्स ऑन द फीजिबिलिटी स्टडी, द मार्केट स्टडी, टेक्निकल एंड द कमर्शियल वेरिएबल एनालिसिस, प्रोजेक्ट एंड अप्रेजल आर इंपार्टेड टू द ट्रेनीज. ट्रेनीज को ये सारी चीजें इंपार्ट करी जाती है कि भाई मार्केट को कैसे सर्वे करना है, टेक्निकल एंड कमर्शियल वेरिएबिलिटी एनालिसिस किस तरीके से करना है, प्रोजेक्ट का अप्रेजल कैसे मिलेगा आपको, इन सब चीजों के ऊपर डिस्कस करा जाता है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं फील्ड वर्सेस विजिट वर्सेस द इंडस्ट्रियल एक्सपोजर. फील्ड विजिट या इंडस्ट्रियल एक्सपोजर उनको दिया जाता है. इंडस्ट्रियल एक्सपोजर और द फील्ड विजिट्स आर इनबिल्ट इन द कोर्स ऑफ करिकुलम. कोर्स करिकुलम में ये इनबिल्ट ही होता है. दिस इज डन टू familiarize the trainees with the real life situation of the entrepreneurs in the small business. Small business में जो real life entrepreneurs हैं उनके ऊपर ये क्लासिफाई करा जाता है. Whether the fields visit give the first hand knowledge and exposure to the participant. Participant को सबसे पहले फील्ड की नॉलेज दी जाती है, फर्स्ट हैंड नॉलेज दी जाती है, एक्सपोजर दिया जाता है रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज. इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है. टेक्निकल नॉलेज. Once the entrepreneur selects the particular enterprise, जब एक बार एंटरप्रेन्योर ने एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज को सेलेक्ट कर दिया, टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रेड इज एसेंशियल. तो ट्रेड का एक टेक्निकली समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है यहाँ पे. एंटरप्रेन्योर्स नीड्स टू आल्सो नो द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स द कॉस्ट एंड बेनिफिट. और एक एंटरप्रेन्योर को ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे उसका कॉस्ट बच रहा है, किस जगह पे उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल रहा है. ये सारी नॉलेज भी एक एंटरप्रेन्योर के पास होनी चाहिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्केट सर्वे. मार्केट सर्वे क्या है? जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है एक्चुअल कंडक्ट, जो भी एक्चुअल के अंदर जो मार्केट सर्वेस करे जाते हैं उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट के ऊपर वो चूज कर सकते हैं अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट. द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर इनवाइटेड टू द ट्रेनिंग प्रोग्राम. जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर इनवाइट करा जाता है टू शेयर देयर एक्सपीरियंस इवन विद द ट्रेनीज एज द इरोज मॉडल. एक्सपीरियंस के साथ साथ इन सब चीजों को शेयर करा जाता है. इन फाइन द ट्रेनिंग इनपुट्स आर डिजाइन इन द कोर्स करिकुलम इन सच अ मैनर दैट द ट्रेनी एंटरप्रेन्योर कैन बी वेल ग्रूम्ड टू द शोल्डर एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द बिजनेस वेंचर. जहां पे बिजनेस वेंचर की रिस्पांसिबिलिटीज को उनके हिसाब से मेंटेन करा जाता है effectively and can stand to the challenges. और challenges के ऊपर खड़े उतरते हैं वो. Odds and advertise that may crop up and during his enterprise creation and the management. Enterprise creation और management के according सारे odds को create करा जाता है. Methods of the entrepreneurship training. Entrepreneurship training के कितने methods होते हैं? सबसे पहला है individual instruction. Under this method a single individual is selected for the training. Training के लिए एक single individual को select कर दिया जाता है. This mode of training is an undertaken where the complicated skills is to be taught to an individual. जहाँ पे एक individual को कॉम्प्लिकेटेड स्किल्स के ऊपर सिखाया जाता है, काम में लिया जाता है उनको. नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप इंस्ट्रक्शन. दिस मोड ऑफ ट्रेनिंग इज सूटेबल फॉर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है इनके लिए सूटेबिलिटी रखी जाती है इन सब चीजों की. हु हैव टू परफॉर्म द सिमिलर टाइप ऑफ द वर्क. जो जिसके अंदर उनको एक सिमिलर टाइप ऑफ वर्क को परफॉर्म करना पड़ता है. वेयर जनरल इंस्ट्रक्शन इज एप्लीकेबल टू ऑल आर टू बी गिवन. और जनरल एप्लीकेशंस उनको दी जाती है जितनी एप्लीकेशंस उनको वहां पे परफॉर्म करनी है. लेक्चर मेथड. हियर द इंस्ट्रक्टर ओरली कम्युनिकेट्स द लेवल ऑफ द लेवल टू बी फॉलोड बाय द लर्नर्स. लर्नर्स कितना लेवल है, क्या क्या चीजें फॉलो कर रहे हैं. अंडर दिस मेथड whenever there is any doubt, जहां पे कहीं भी कोई भी छोटा सा भी डाउट होता है, they may be clarified a see to the spot. वो क्लैरिफाई कर सकते हैं अपने स्पॉट को उसी के हिसाब से. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है? where the performance of the work is to be shown
शोन फिजिकली बाय द इंस्ट्रक्टर, जहां पे परफॉर्मेंस को फिजिकली इंस्ट्रक्ट तरीके से बताया जाता है। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग दिस मेथड कैन बी फॉलोड, तब इस मेथड को फॉलो किया जाता है। दिस इज मोर concerted with the practical than the theoretical aspect, practical से ज्यादा theoretical aspect के ऊपर यहाँ पे emphasis डाला जाता है। written instructional method, this medium of the training is followed where the in future reference is to be made by the learners, यहाँ पे future reference रखा जाता है learners के ऊपर। this method is mostly followed where there is a standardized production system is followed, जहाँ पे standardized production system को follow करते हैं, वहाँ पे ये smooth functioning के ऊपर performance दी जाती है। conference are frequently organized where an expert in the field share their ideas and bring to the notice of the learners the new ideas and the techniques that can be used to increase the production, वो टेक्निक जहां पे यूज करा जाएगा प्रोडक्शन के अंदर काम में लेते हुए। Meetings are the mode of the training involve a group of people who are discuss the various problem, बहुत सारी problems को discuss करा जाता है, confronting them, जो भी problems उनके सामने आ रही है। They involve exchanging the ideas and the views later on, उसके बाद ये views और ideas को share करते हैं बाद में, and coming to the firm conclusion based on the various proposal and alternatives, बहुत सारे proposal और alternatives को देखते हुए। Schemes for the assistance of the training and of the entrepreneurs की training के लिए क्या-क्या schemes रखी जाती हैं। The scheme NVC providing the financial assistance to the state level के ऊपर एक financial assistance दी जाती है। Existing proposed institutions meant for the supporting entrepreneurship development के लिए जितना भी existing support staff है उन सब चीजों को वो regulate करता है और जितनी भी self employment activities है। Under this scheme the grant is given to setting up of a new entrepreneurship development institution, जहाँ पे एक नए entrepreneurship development institution को set up करा जाता है, and also the upgrade and the modernization of the existing EDIs in the country, और country के अंदर जितने भी existing EDIs हैं उनके ऊपर भी emphasis डाला जाता है। Under this scheme, a matching grant of 50% subject to the ceiling of the 100 lakh is provided for building के लिए 100 लाख से भी ज्यादा equipments को provide करा जाता है। Equipments, training aids, etc. The balance contributed to the state, union territories and the other agency, और बाकी सारे balances union territories, state इन सब चीजों के ऊपर डाले जाते हैं। The financial assistance provided under this scheme is only catalyst, जो भी financial assistance है वो basically catalyst ही होती है and supportive to the contribution and the efforts of the state union territory government and the other agency, और बाकी सारी चीजें state union और government territories के अलग अलग जगहों पे रखा जाता है। Under no circumstances the grants funds provided under the scheme can be used to meet the recurring expenditure of the institution, कोई भी recurring expenditure है जो institution का उसके ऊपर कभी भी focus नहीं करा जाता है। The institution organization seeking the assistance under this scheme should be registered as a non-profit organization, not for profit organization के अंदर registered होनी चाहिए वो। The entrepreneurship development as its main ऑब्जेक्टिव, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप का ही डेवलपमेंट करना। शुड बी प्रोसेस अ क्लियर टाइटल ऑफ द लैंड रिक्वायर्ड टू सेटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए छोटा मोटा लैंड भी उनके पास होना चाहिए। हैव अ सेपरेट बैंक अकाउंट इन द शेड्यूल बैंक के अंदर एक सेपरेट बैंक अकाउंट होना चाहिए जहां पे रिसिप्ट्स और फंड्स को वो रिसीव करेंगे, क्रेडिटर्स एंड पेमेंट्स को मेंटेन करेंगे और गवर्नमेंट काउंसिल के इंस्टीट्यूशन को मैनेज करेंगे। ऑल द प्रपोजल अंडर दिस स्कीम्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिकमेंडेड बाय एंड रूटेड थ्रू द कंसर्न स्टेट एंड द यूटी गवर्नमेंट, कंसर्न स्टेट और गवर्नमेंट के ऊपर इनका सबका एम्फेसिस सबसे ज्यादा पड़ता है इसी के लिए। तो ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है ईडीपीज के बारे में। थैंक यू सो मच।